हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल SM ICSE classes. In this video we are going to cover the topic circle. This topic is helpful for the students of class 8th, 9th and 10th. This is first video of circle. So in this video we are going to cover all the definitions and all the points related to circle. So the first point is circle. What is circle? Let's know what is circle. So सर्कल को समझने के लिए एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने ऐसे प्लॉट किया हुआ है, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो इन सभी पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को फिक्स्ड करना है. सपोज मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर लिया. अब इस पॉइंट के चारों तरफ उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करना है जो कि इससे इक्वल डिस्टेंस पर हों. इस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करना है जो कि इससे इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऐसे इस तरह से. और फिर इन सभी पॉइंट्स को जो इसके चारों तरफ हैं इक्वल डिस्टेंस पे, इन सभी पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करा देना है. ज्वाइन कराने पर इस तरह से सर्कल फॉर्म होता है. So what should be the definition of circle? Circle is a simple closed curve formed by joining infinite numbers of points in a plane which are equidistant from a given fixed point. Circle is a simple closed curve formed by joining infinite numbers of points in a plane which are equidistant from a given fixed point. Equidistance means equal distance. सो सर्कल को हम लोग कंपास के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. ये फिक्स पॉइंट, कंपास की जो नोक है ये इसका फिक्स पॉइंट है. कंपास को पकड़ने का जो तरीका है, पेंसिल को नहीं पकड़ा जाता, हमेशा इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे पकड़ना है इस तरह से, और ये इस तरह से डॉटेड, हम लोग डॉटेड सर्कल बनाएंगे. इस तरह से डॉटेड सर्कल, ये डॉटेड सर्कल डॉट पॉइंट्स को शो कर रहा है, पॉइंट्स को शो कर रहा है. एंड दिस इज फिक्स पॉइंट लाइक दिस. सो दिस आर द डॉटेड. ये हल्का दिख रहा है, बट ट्राई टू मेक दिस विद द हेल्प ऑफ कंपास. Sometimes we can use pen or sketch pen to make a bold circle, clear circle. पेंसिल से यहाँ डॉटेड आ रहा है, लाइट आ रहा है. So we can draw with the help of sketch like this circles. यहाँ पे इसको पकड़ना है, यहाँ पे ऐसे. So dotted circle I want to draw. You can see. So the fixed point is called center. The fixed point of this curved figure is called center. So fixed point of the curve
closed curve is center. What is circumference? Circumference of the circle. ये जो closed curve है, जो कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पे फॉर्म हुआ है, इसको सर्कमफरेंस कहेंगे. The closed curve formed by joining infinite numbers of points is called circumference. Circumference पे infinite numbers of points होते हैं. Circumference को यहाँ पे perimeter of circle भी कह सकते हैं. Next point is radius. As we know, there are infinite numbers of points on the circumference. तो किसी भी एक पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कराने पर जो लाइन फॉर्म होगा, लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड रेडियस. एंड रेडियस इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, समटाइम्स स्मॉलर. तो लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग सेंटर and the point of the circumference is called radius. There are infinite numbers of radius. You can see like this. क्योंकि circumference पर infinite numbers of points होते हैं, तो उन सभी points को center से join कराएंगे तो radius form होगा. So infinite numbers of radius are there in the circle. This is sign of infinite. The next point is chord. सर्कल के किसी भी दो पॉइंट पे, सर्कमफरेंस के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कराने पे जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है उसको chords कहते हैं. Line segment formed by joining any two points of the circumference is called chord. This is center, and there are infinite numbers of chords in a circle. Circle में infinite numbers of chords होते हैं. In this way you can see infinite numbers of chords are there in the circle. ऐसे हमने chords को प्लॉट किया यहाँ पे. तो एक ऐसा chord है जो सेंटर से होके जाएगा. That will be the longest chord of the circle, and longest chord of circle is called diameter. Diameter is denoted by sometimes capital D, sometimes small d. And there are infinite numbers of diameter in the circle. इधर से ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे प्लॉट कर सकते हैं. Infinite numbers of diameter in the circle. डायमीटर जो होता है वो रेडियस का जस्ट डबल भी होता है. क्योंकि अगर हम सेंटर की बात करें यहाँ पे सेंटर की, तो इधर ये रेडियस हो गया इस तरफ और इस तरफ भी ये रेडियस हो गया. तो इधर से आर, इधर से आर, स्मॉल आर कैपिटल आर कोई भी, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो डायमीटर डी बन जाएगा. D is equal to 2R.
Diameter also divide the circle in two equal halves like this. यहाँ से ऐसे ऐसे ये डायमीटर हो गया, तो ये फर्स्ट पार्ट एक हो गया और ये सेकेंड पार्ट. दिस इज फर्स्ट हाफ एंड दिस इज सेकेंड हाफ. तो ईच हाफ इज नोन एज सेमी सर्कल. सेमी सर्कल, ये अगर डायमीटर है तो ये क्या होगा, सेमी सर्कल हो जाएगा ऐसे. If we break the circumference in two parts, one is a smaller part and then other is bigger part, तो ये जो पार्ट है इसको आर्क बोलेंगे. ये छोटा वाला आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, सो इसको माइनर आर्क बोलेंगे. और ये जो बिगर आर्क है, ग्रेटर आर्क, इसको मेजर आर्क कहेंगे, मेजर आर्क. So what is the definition? Piece are part of the circle, part of the circumference. Piece are part of the circumference is called arc, an arc. If we see this bangle, इसको अगर हम लोग ऐसे ब्रेक कर दें दो पार्ट में, तो ये आर्क जो है, दिस इज आर्क. बैंगल्स को दो पार्ट में अगर ब्रेक कर दें, एक छोटा बन जाए और एक बड़ा बन जाए, तो छोटे वाले आर्क को माइनर आर्क और बड़े वाले आर्क को मेजर आर्क कहेंगे. यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आर्क जो है ये दोनों सेम साइज़ के हैं, तो ये सेमी सरकमफरेंस कहलाएगा या फिर सेमी आर्क भी कहलाएगा. और we can break the circumference circles in many parts like this, so many parts. So we can say there are infinite numbers of arcs are also there in the circle. तो हमने सर्कल में देखा कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेडियस होता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर होता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉर्ड्स होता है और इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ आर्क भी होते हैं. लेकिन यहाँ पे सर्कल को, सरकमफरेंस को दो पार्ट में ब्रेक करके बताया गया है कि छोटा वाला पार्ट माइनर आर्क और बड़ा वाला पार्ट मेजर आर्क कहलाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज सेगमेंट. इफ वी ड्रॉ any one of the chord in the circle, then that chord divide the circle in two parts. One is smaller part and another is bigger part. So this space, this region bounded by an arc and a chord, region bounded by a chord and arc is called segment. This is smaller segment, so this is called minor segment. और ये बड़ा वाला इधर वाला पोर्शन,
This is called major segment. So the region bounded by a chord and arc of the circle is called segment. There are two segments in a circle. First one is minor and the second one is major. एक कार्ड जो होता है ना, एक कार्ड, वन कार्ड कैन डिवाइड द circle in two segments. So we are talking about here one chord. Now the next point is sector. Sector क्या है? This is center of the circle. If we draw two radius like this, the first one, now the second one. So the region between this arc and this two radius, this region, हम लोग ऑरेंज खाते हैं ना, ऑरेंज का एक पीस, उसमें बहुत सारे पीसेस होते हैं, एक पीस अगर निकाल लें तो उसको सेक्टर कहेंगे. एंड देयर आर सो मेनी सेक्टर लाइक दिस. सो इफ वी टॉक अबाउट ओनली टू सेक्टर्स, दिस स्मॉलर वन एंड देन बिगर वन लाइक दिस. ये सर्कल, ये स्मॉलर वन हो गया, दिस इज स्मॉलर वन, और एक इधर वाला जो ये पोर्शन है, ये वाला बड़ा वाला. सो दिस इज मेजर सेक्टर एंड दिस इज माइनर सेक्टर. हाउ वी कैन गिव द डेफिनेशन? द रीजन बाउंडेड बाय an arc and two radius. दो रेडियस और आर्क के बीच का जो स्पेस होता है, रीजन जो होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज टेंजेंट. टेंजेंट को हिंदी में स्पर्शी कहते हैं. जनरली हम लोग कहते हैं ना, सादर चरण स्पर्श. स्पर्श का मतलब टच करना, छूना. तो अगर कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इस तरह से टच करते हुए जाए, ऐसे किसी एक पॉइंट पे टच करें, तो इस लाइन को टेंजेंट कहेंगे. दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सर्कमफ्रेंस पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं. सो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस. यहाँ भी ऐसे टेंजेंट आ सकता है, इस तरह से ऐसे इधर भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है. सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स are there in the circle. और ये जो पॉइंट्स होता है, एक पॉइंट जहाँ पे ये लाइन टच करता है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं. नेक्स्ट इज सेकंड और सेकंड ऑफ द सर्कल. सेकंड क्या होता है? कोई सर्कल है, अगर कोई लाइन इस सर्कल को इस तरह से क्रॉस करते हुए जा रही है, तो ये लाइन दो पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है.
So this line is called secant. ये लाइन सपोज एक्स वाई है और पॉइंट एम और एन पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइन एक्स वाई विल बी कॉल्ड सेकेंड. मीन्स व्हेन अ लाइन intersect a circle at two distinct points, so the line is called secant of the circle. And we can see there are so many lines like this. Many lines can pass through like this. इस तरफ से भी ऐसे जा सकता है, ऐसे. So there are infinite numbers of secant in the circle. So my dear children, I hope all the definitions are covered now. In the next video, we'll see the theorems related to circle. Then we solve some questions of the exercise. So that's all for this video. My dear children, if you like my teaching, please like, share and subscribe.